In a week in which the India Alliance, the opposition bloc, has scored major wins in the by-elections, two major BJP leaders, Nitin Gadkari and Yogi Adityanath, have spoken publicly about mistakes that they think the BJP has made and is making. I'm Barkha Dutt, you're with the Mojo Story. Our focus today is on the statements by Yogi Adityanath and Nitin Gadkari, both of whom have been somewhat critical about mistakes that they think the BJP has made. Yogi Adityanath, speaking in Uttar Pradesh, spoke about how overconfidence he believes has hurt the BJP. He did also, of course, speak about the division of votes along caste lines, but he did emphasize how overconfidence by the BJP has been a mistake. Nitin Gadkari spoke about the BJP no longer being a party with a difference necessarily, saying that if the BJP was going to behave like the Congress, then what was the use of the Congress exit and the BJP entry? Both of these comments from two major BJP leaders have come in a week when the India Alliance can legitimately claim celebrations after the recent by-elections. The opposition was able to take 10 of 13 seats. Remember, these were the first major elections that have taken place after the 2024 general election verdict. How do we read these statements made in public, not made in private, at least reported publicly, and made to internal forums of the BJP, which is what actually makes it all very interesting? And how do we read the recent by-poll election results? Let me introduce our guests on the program today. Joining us is Ashwini Shahi, senior leader of the BJP. Welcome to the program. Namaskar, Ashwini ji. Saba Naqvi, author and senior journalist, is with us. Welcome, Saba, to the program. And also joining us is Nasir Salim, who's, of course, a leader and spokesperson of the Samajwadi Party. Welcome, everybody. And to get the ball rolling, let me play out for you the statement made by Yogi Adityanath that has everybody talking. Listen in. लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। I will start with you, अश्विनी जी, आपसे शुरू करती हूँ। योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया कि एक ओवर कॉन्फिडेंस की गलती हुई। उन्होंने ये भी कहा कि वोटों का विभाजन कास्ट के लाइंस पे हुआ है और आज ऑपोजिशन उछल रही है। अब तो ऑपोजिशन और भी उछलेगी, उनको बाईपोल रिजल्ट्स में भी अच्छे नतीजे मिले हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान को किस तरह से देखें, और जब हम उनको नितिन गडकरी के बयान के साथ जोड़ते हैं जिन्होंने भी गलतियों की बात की, तो ऐसे लगता है कि बीजेपी के अंदर कुछ चर्निंग है। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? वर्षा जी, देखिए, बयान आए हैं, सबके बयान सबके सामने हैं। अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी सभी मसलों को हल करने में है, माहिर है, और हम लोग कर लेते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति जो है, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, यह आत्मविश्वास तो वो था हमारे पास, ये कमी है। अति आत्मविश्वास कहा जाता है, विश्वास सही है, अति आत्मविश्वास गलत है। तो हमारे कार्यकर्ताओं में, कुछ नेताओं में, हमारे वोटर में कुछ ऐसा आत्मविश्वास था कि हमारे पास योगी और मोदी जैसा सशक्त नेतृत्व है, ये पहला आत्मविश्वास था। हमारे पास दूसरा आत्मविश्वास था कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में शानदार कानून व्यवस्था है, जो महिलाएं आजकल हमारी जो है बेहतर तरीके से निकल सकती हैं। सारी कानून व्यवस्था की जो है योगी जी ने कंट्रोल कर रखा है। बहुत बढ़िया ये आत्मविश्वास था। तीसरा था कि हमारे पास राम मंदिर है, ये आत्मविश्वास ही था। चौथा था कि हम जो है शौचालय भी बनाए हैं, राशन भी दे रहे हैं, तो हमने सबका साथ और सबका विकास किया है, ये भी आत्मविश्वास की बात थी। उसके बाद एक कहा जाए कि नेतृत्व के क्षमता के आगे, अरे हम नहीं जाएंगे वोट देने तो ये दे लेंगे,
वो नहीं जाएंगे तो उनके हमारे एक वोट से क्या होता है, ये भी अति आत्मविश्वास के श्रेणी में ही आता है। लेकिन उस पर भारी क्या पड़ गया, उस पर जो भारी पड़ गया वो एक फर्जी वीडियो का इंडिया अलायंस के द्वारा चलाना कि आरक्षण खत्म कर देंगे। आप लोगों ने देखा होगा उस वीडियो को, सबने देखा होगा। 8500 खटाखट सरकार 4 तारीख के बाद 5 तारीख को खटाखट लीजिए, एनजीओ के द्वारा पूरे देश में किस तरीके से सिग्नेचर करके राहुल गांधी के पर्चे बंटवा दिए गए। वो फर्जी वो घोषणा के अंदर में जो है हमारे कुछ भाई आ गए। उसके बाद संविधान खतरे का, संविधान लेकर सर पर जो ये लोग नाच रहे थे, और हमारे ही नेताओं के, कुछ नेताओं के बयान उसको और मजबूत कर दिए। अयोध्या से बयान उठा, साउथ से बयान उठा कि संविधान हम बदल देंगे। इसको ये संविधान लेकर नाचने वाले जो संविधान के हत्यारे थे, जिन्होंने संविधान की हत्या की थी, हमने चलिए खैर अब उससे जो है संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया, मगर इन लोगों ने ही उस फर्जी नैरेटिव फैलाया जिसमें जनता भ्रमित हो गई और हमारे लोग अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए। और ये सही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय नितिन गडकरी जी ने जो कहा है वो अच्छी चीज कहा है, हमको अपने सुधार की जरूरत है। लेकिन एक लाइन और कह के आपका सवाल लेता हूं कि देखिए, तीसरी बार लगातार 240 सीट पाना, आज समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा कूद रही है। इन लोगों को लग रहा है कि अब तो इतिहास हमारे नाम से ही लिखा जाएगा, लेकिन हम 3 सीट ही हैं इनसे पीछे। लेकिन भाई तीसरी बार हम सरकार में हैं और 200 बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि जनता ने हमको सबक तो सिखाया, मगर सरकार में भेजकर सबक सिखाया कि आप लोग गलती किए हैं, सुधार कर लीजिए, सरकार में आप बैठिए, आप बेहतर काम कर रहे हैं, वरना आप हम लोगों को कहां जनता भेज देती पता नहीं चलता, तब ये लोग क्या करते। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने फर्जी वीडियो की बात की, फेक, जिसको आप फेक न्यूज कहते हैं, कि संविधान बदलने की बात को आप फेक न्यूज कहते हैं, हालांकि आप ही के पार्टी के कुछ लीडर्स ने ये खुल के बयान दिया। लेकिन इसमें जो योगी जी ने बात की, ओवर कॉन्फिडेंस, वो कितना आप मानते हैं या सहमत हैं? मैंने बताया ना कि ओवर कॉन्फिडेंस हमारे लोग कहां आ गए, नेता कार्यकर्ता जहां आ गए कि हमारे पास योगी है, हमारे पास मोदी है। अब ये बताइए कि पूरे देश में मोदी और योगी जो 2 नाम है, इससे बेहतर कोई जननेता हो तो जरा बता दीजिए हमको। बाकी के लोगों को तो बनाया जा रहा है, चलिए अब कुछ दिन में हो सकता है कि आप लोग कुछ लोग जो है उनको स्थापित कर देंगे, करने पे लगे थे, हो गया, चलिए संवैधानिक पदवी पा गए, अच्छी बात है, खानदानी विरासत है उनकी, उसको संभाल रहे हैं। मगर हाँ, ये आत्मविश्वास हमारे अंदर था कि हमारा नेता शानदार है, योगी से बेहतर नहीं, मोदी से बेहतर नहीं। तो ये हम थे ना कि उन लोगों के, और आधे से अधिक लोग जो 2 चुनाव जीते हैं उसमें मोदी जी के नाम पर जीत के आए, कहने में कुछ नहीं था, मोदी जी के नाम पर जीतते थे। योगी जी जहां जाते थे सभाओं में, वहां पर प्रत्याशी की जीत होती थी। अश्विनी जी, आप समझ सकते हैं कि इस बयान से ये निकलता है कि पहले आपको लगता था मोदी जी है हमारे पास, योगी जी है, इसका मतलब मोदी जी एंड योगी जी आर नो लॉन्गर इनफ टू विन इलेक्शंस। ये भी तो निकलता है ना, करोलरी लॉजिकली यही निकलती है। देखिए, ये वही तो कहा जाता है ना कि गिलास का पानी आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। तो वो जो आप निकाल लें, आपके जो मतलब की चीज हो, पार्टी जो निकालेगी। हमारे 2 सशक्त नेता थे, 2 सशक्त नेता हैं, और हमारे पुराने नेता भी सशक्त थे, और आगे भी नेता जो आएंगे हमारे सशक्त होंगे। क्योंकि पहले देखिए कांग्रेस थी 56 साल तक, इतने दिनों तक। और एक लाइन कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा, जो आपकी सवाल में आया था कि ये लोग और उछल रहे हैं बाई इलेक्शन के रिजल्ट से। बहुत लोग उछल रहे हैं, कांग्रेस की बड़ी प्रवक्ता लोगों ने जो है बड़ा बढ़िया ट्वीट किया और ये किया, अच्छा है। लेकिन मैं सबसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, और मैं आपसे चाहूंगा थोड़ा सा इस पर संज्ञान रखिएगा कि जरा बंगाल में वो सीट थी हमारे पास, पंजाब में वो सीट हमारे पास थी, 8 सीट हो गई, तमिलनाडु में थी हमारे पास सीट। क्या कहते हैं ये लोग, किस भ्रम में जीते हैं? वो हमारे पास थी नहीं और कहते हैं भाजपा हार गई। हाँ, उत्तराखंड की सीट थी हमारे पास, उसको हारने का हमको कष्ट है। ये आपकी तो ये आपकी बात सही है कि स्विंग्स के नजरिए से हमें कोई भी रिजल्ट देखना चाहिए कि सीट बदली या नहीं बदली। ये that point of yours is valid. Nasir Salim, let's bring you in. The opposition is very confident at this point. Mamata Banerjee issued a statement saying the national trend is towards India bloc and so on. But as Ashwini Shahi says,
you have to talk about how many seats changed hands, not about how many seats the opposition won. What do you say, and how do you look at the statements by Nitin Gadkari and Yogi Adityanath? Good evening, Barkha. Thank you very much for having us on your show. I am absolutely shocked and horrified with what my BJP panelist is telling you. The reality is that they've lost a lot of seats in UP in 2024 in the Lok Sabha, and nobody can shy away from that. As far as UP is concerned, Barkha, I can tell you this. The situation on the ground is far away from reality. Overconfidence is a nice alibi that they are using. The ground reality is there is custodial deaths, farmer suicides are on the rise in UP. Women's safety and crime rates he mentioned about that. I must tell you, we're not saying this is not the SP report saying this, Barkha. NCRB validated data is showing trends that have emerged on account of women's safety have not been fixed, have not been in order. They keep saying that it was bad during the SP regime. What have they done? MSP, the promise of delivery is failed continuously, I must tell you. What have they done today on the infrastructure for farmers and the entire farmer economy in UP? Unemployment, coupled with the biggest issue today that the youngsters are facing, the NEET paper leak is in front of you. But how do you respond? Last not the least, Barkha, one last quick point. Atrocities continuing to be done on minorities and Dalits. I think the concept of PDA has worked on the ground. The administration in UP has failed miserably, and these are alibis. And I must also ask my fellow panelists here, what happened to your RSS cadre? Where were they? They were not available for canvassing for you in UP, which is the largest state. So the point is, the BJP is in a completely headless situation. Let me tell you, there is nothing left of them. It's in a complete colossal. They're wasting time. They need to. But they are in government. And as Ashwini Shahi says, कि उन्होंने हमें सबक सिखाया, लेकिन सरकार में भेजकर तीसरी बारी सबक सिखाया. ये कैसा सबक सिखाया? Modi was not rejected. He was contained. ये बताइए, ये कैसा सबक सिखाया कि मोदी का परिवार ही हार गया? जो आप 400 पार की बातें कर रहे थे, आप तो 250 भी नहीं पहुंच पाए. पहला. दूसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा, ये जो अपनी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और जो ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, मुझे इनसे एक सवाल ये पूछना है. 400 और 240 की जो सीट आई है, जो फर्क आया है, ये आप कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस से आया? मुझे तो हैरान है कि आपको तो रियलिटी पता ही नहीं है. जो जनता मांग रही है उस पे आपने अपने प्रोमिसेस को 2014 और 2019 की जो आपने मैनिफेस्टो में जो बड़ी बड़ी बातें बोली थी, हमने उस पे लड़ाई करी है. हमने जनता की आवाज. Acha, I'll let Ashwini Shahi respond after Sabha and Neerja have spoken. I hope Neerja's signal works. Sabha, this argument will continue between the opposition and the BJP on how to read 2024 or even how to read the bypolls. But the statements by Yogi Adityanath and Nitin Gadkari, which is what we are really focused on today, Nitin Gadkari saying the BJP is in danger of becoming like the Congress, so fir fayda kya? Yogi Adityanath publicly calling out overconfidence of the BJP. How do you read these two statements? Can we unmute Sabha, please? I can't hear Sabha. It's very Sabha. old style BJP, what is happening. I'm talking Vajpayee era. So let's understand which states they both represent and what they are saying, each one of them. Nitin Gadkari is from Maharashtra. His seat is in Nagpur. In Maharashtra, also there was an electoral disaster, a big one, the second largest state. The BJP, I think, got 18 or something with its allies. They did badly. What he is saying, and the entire responsibility for the policy of Todphod, inko lo, corrupt log ko lo, was taken by the Delhi leadership. It is not an RSS policy. It is not Nitin Gadkari's policy. I mean, I know this for a fact through sources. It was entirely at Delhi. Sabko le lo, Todphod. Even during the election, I mean, I think I wrote it or said it or somewhere, there was resentment with the local workers of the BJP. Why should we work for Ashok Chauhan, Ajit Pawar, all corrupt guys? Nitin Gadkari is speaking from there. Nitin Gadkari is not saying anything that the RSS would not back up. If you recall, the Sarsang Chalak has already said something.
Now Nitin. Now that is Nitin Gadkari. I'm dispensing with that statement first. It's the less important. Now I will get to the UP statement, which the Chief Minister of Uttar Pradesh is making. It is well known that his recommendations about changing some sitting candidates were ignored. That the meeting which took place to finalize the candidates, entirely Delhi took the decision and they were mostly repeated and he was ignored. But what is hit really hard? So we can say that the responsibility, and plus we must remember the decision, the bizarre decision to say 400 par was also a central command decision. It came from where? I mean, on what basis 400 par happened in extraordinary circumstances of Indira Gandhi's death and assassination? Why would the BJP just strut around and say Modi ki guarantee and 400 par? They did that. That added to the narrative. It's not just a video that caused this thing ki संविधान बदलेंगे. असलियत उसमें है जो साई जी, जो अनुप्रिया पटेल ने आपको कहा, क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश के, हम बहुत दिनों महीनों से ये सुन रहे हैं, 1 साल से ये सुन रहे हैं कि नौकरियां गायब की जा रही हैं. Reserve, Anupriya Patel wrote a letter after the mandate, please do not give reserve category jobs to general category people. More than that, if you start speaking to the Dalit intellectuals, Barkha, you get a program with them, they will tell you that the jobs are vanishing. They are reducing, they are outsourcing government jobs to the private sector. That is the reason why Akhilesh zoned in. He did something very smart and he actually gave tickets to Dalits. The PDA worked. It is because there was already a social reality unfolding in Uttar Pradesh, which led to this amazing upsurge of the Samajwadi Party. On top of that, if you will recall, all of us would, there were statements from the BJP leadership, and I speak of the President JP Nadda, saying RSS and BJP are autonomous. Many people in the RSS, have said, I mean, they were treated with arrogance. They were not important anymore. All of these things accumulated and created a perfect storm, but the serious one that they don't know how to counter is this whole caste thing having been just fallen apart. And it's very hard to put it together now in UP. You know, now this point that you made is very important about how, even though the BJP may keep saying that nobody is taking away reservation, privatization is also being perceived as a loss of affirmative action, benefits and jobs. So ये एक बहुत जरूरी बात है अश्विनी जी, मैं आपसे पूछूंगी इसके बारे में. लेकिन सबा योगी आदित्यनाथ का statement, you see, if I'm not wrong, it was made in the presence of the BJP's JP Nadda, who's in government today, but was party president. Do you see this as Yogi Adityanath guarding his own turf, preparing himself for the assembly? Because he did say कि अब चलो इस सब को छोड़ो, अब आगे assembly की तरफ बढ़ते हैं. If we talk about responsibility, the greater responsibility, Yogi Adityanath does have a law and order. कि उन्होंने अच्छा law and order image रखा है. लेकिन उनका भी एक एस्पेक्ट आप गौर करिए, लेकिन अभी बीजेपी नहीं बदल पाएगी. मतलब ये इसमें भी सत्य है. If Modi's regime had been very strong, it is true they might have changed Yogi Adityanath. You know, they will not do it now. Okay, they will not do it now. He is too volatile, but they have a challenge. It is under his regime. He is a forward cast. You must remember this, Barkha. Please notice, wherever there is a forward cast leadership, the BJP has lost seats. Devendra Fadnavis was the second Brahmin in the history of Maharashtra. Second, Manohar Joshi was the first. Otherwise, it's Marathas and Dalits and all who have been leaders. He was made the chief minister. Now, of course, he's deputy chief minister because they broke everybody. Alag baat hai, Maharashtra ki to itne twists and turns hai. They made, I'm not saying it's directly linked. They made a Brahmin the chief minister in Rajasthan. Aapko kya madad? Ultimately, the social justice card has come back. It's an ironical thing, but observe it carefully. In UP, Kalyan Singh was the chief minister. The BJP did what they called social engineering. Up they've gone with the Thakur. Now, this नौकरी के बीच में हम सबने सुना है कि ज्यादा नौकरी, ज्यादा अहम पोस्ट ठाकुरों को मिलता है. ये तो कहने की तो अनुप्रिया पटेल जब खत लिख रही है. So आप कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ's caste is a political disadvantage for him today.
I'm saying he's still of advantage, but hypothetically, it's not a great situation. But Yogi right now, they cannot change him. The Delhi is too weak. Delhi is too weak to make that kind of change right now. He's not good. In any case, he was the one chief minister. They couldn't tell him what to do. He was always independent. He was always autonomous. The rest had become yes man. So the BJP has many things to reflect over. But the privatization point that you have picked up, that's a larger thing we need to understand. Because of this large-scale inability to create jobs, that is now playing out in the resentment कि हमारी नौकरी ये लोग private sector को दे रहे हैं और फिर general category से भर रहे हैं. ये हुआ है जी. Okay, before Ashwini Shahi responds to all of these points, Nasir Salim, आपने बात की local issues की, jobs की, RSS की. योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में ये भी बोला that opposition जाति पर लोगों को divide कर रही है. And you can't deny that the PDA is your party having actually borrowed from the BJP's playbook. क्योंकि अगर आप पहले चुनाव देखिए उत्तर प्रदेश में, तो BJP was very successful playing OBC politics. BJP was very successful with non-Yadav OBC. You've actually taken a leaf from that and created a new social coalition, Pichhade Dalit, Alpsankyak, and others, right? So when Yogi Adityanath says कि आप लोग तो जाति की राजनीति कर रहे हैं, आप हमें कहते हैं हम धर्म की राजनीति, आपकी राजनीति जाति की है, तो आप क्या बोलेंगे? Can we unmute? You might be muted at your end, please. Yeah. जी बरखा जी, देखिए सबसे पहले चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमने तो शुरू से ही कहा है कि जिस हिसाब से बीजेपी सिखाती है रूल डिवाइड करने की, तो उसमें से कुछ अच्छे भी गुण हैं. उसमें से अच्छे गुण ये है कि हमने सोशल इंजीनियरिंग कर ली. भाई हमारी सोशल इंजीनियरिंग काम कर गई पीडीए वाली, तो भाई मैं तो उनको मुबारकबाद दूंगा. एसओआर में आइडियाज दिए, हम तो जमीन से जुड़े लोग हैं, हम तो इस पे पूरा अमल करेंगे और सही. पर आप मानते हैं कि आपने ये बीजेपी से सीखा? नहीं, अब देखिए भी अच्छी चीजें निकल के उभर के आएंगे तो हम क्यों नहीं लेंगे, पहली चीज. बट आई थिंक द फंडामेंटल पॉइंट बरखा इज दैट लुक एंड आई एग्री विद सबा जी, देयर इज समथिंग कॉल्ड ठाकुरवाद व्हिच इज हैपनिंग एंड आई कैन टेल यू दिस. और हम बार-बार ये कह रहे हैं, आप किसी भी पुलिस थाने चले जाइए अभी आप उत्तर प्रदेश में, और अगर आप ठाकुर हैं और आपके अगेंस्ट अगर आप एफआईआर करा के दिखा दें तो हम मान जाएंगे. और यही सच है और रियलिटी यही है. तो देखिए ये जो नारा हमने दिया पीडीए का, वो नारा इसलिए दिया गया क्योंकि जमीन पे जो अट्रॉसिटीज हो रहे थे, चाहे वो अल्पसंख्यक के खिलाफ हो रहे हो या दलितों के खिलाफ हो रहे हो या माँ बैकवर्ड के खिलाफ हो रहे हो, और जहां तक ये रिजर्वेशन की बात है और जो संविधान की बात है, भाई हमने तो ये बात नहीं बोली. बीजेपी के कई दिग्गज नेता रिकॉर्ड पे उन्होंने आके ये बोला कि भाई 400 पार के बाद देखिए कैसे संविधान भी चेंज हो सकता है. तो ये जो नैरेटिव जो बिल्ड हुआ है ये हमारा नहीं है, ये हमने तो उस पे काम किया जो सच्चाई थी और जो लोगों ने बताया. तो 3-4 अहम चीजें हैं जिसपे मैंने आपको बार-बार मैंने आपको संक्षेप में बताया. ये कि आज ठाकुरवाद चरम पे है, चाहे वो किसी भी आप नजरिए से देखें. दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों का जो मुद्दा है, बार-बार आपने बोला हम एमएसपी पे बात करेंगे. आपने इतने साल आपने बर्बाद कर दिए, जाया कर दिए, उसमें किसकी सुनवाई हुई? इतने किसान मर गए, सुसाइड इतने बढ़ रहे हैं किसान में, उस पर आपको कोई जवाब नहीं है. जब हम लोगों ने कितनी बार, अखिलेश जी ने कितनी बार असेंबली में सवाल पूछे कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा, आपने ये सवाल उठाए. मैं अश्विनी शाही से कहूंगी कि आपकी और सभा की जो बयान है उन पे टिप्पणी दे. आई डोंट नो नीरजा, कैन यू हियर मी एट ऑल? नीरजा, ओके, आई डोंट थिंक नीरजा कैन हियर मी. अश्विनी जी, बहुत सी बातें यहाँ कही गई है, लेट मी गिव यू अ चांस टू रिस्पॉन्ड. जी देखिए, मैं अभी भी कहूंगा नीरजा जी, बड़े सम्मानजनक तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि कोई ठाकुरवाद की कोई यहाँ पर वो नहीं है. जो चिट्ठी अनुप्रिया जी ने लिखी थी, अनुप्रिया जी को लग रहा होगा कि कहीं उनके साथ कुछ किया गया. अनुप्रिया जी ने तो बयान भी दे दिया किस तरीके से राजा के पेट से जो है रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता, लोकतंत्र में राजा रानी का कोई मतलब ही नहीं था. वो अनुप्रिया जी का बयान था, अपने वोटर अपने लोगों को खुश करने के लिए जो भी हो सकता उन्होंने जो किया था उसमें. कहीं ठाकुरवाद की जहां तक बात आती है, एक तो मैं ये सवाल करके चलूंगा, क्या ठाकुरों को उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है? पहली चीज. दूसरी बात, हम अनिल यादव को नहीं भूल सकते हैं. जिस तरीके से 12 से 17 और माननीय मुलायम सिंह जी के सरता में हर थाने में एक दरोगा जो है पोस्ट होता था,
25-25 डीएम पोस्ट होते थे 75 जिलों में। तो कहाँ ये लोग कहते हैं यादवबाद। इटावा से सूचियां निकलती थी सिपाहियों की, किस तरीके से भर्ती होती थी, जाना पड़ता था लड़कों को कोर्ट, हर जगह यादव की भर्ती होती थी। कहाँ ये लोग बात करेंगे। ये लोग जाति के नाम पर ही पैदा हुए हैं। यादवबाद के नाम पर MY का नारा इनका ही था, हमारा नहीं था। लालू यादव जी जो आज इंडिया अलायंस के हैं, उन्होंने नारा दिया था भूरा बाल साफ करो, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला साफ करो, बाकी को हाफ करो। ये लोग जातिवाद पर पैदा हुए हैं। ये लोग, मायावती जी की पार्टी जातिवाद पर पैदा हुई है। और नौकरियों की बात रही तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। 1,95,000 नौकरी 5 साल में लिखित रूप से समाजवादी पार्टी ने दी थी। और आज नौकरियों की बात करते हैं। इनके समय में जितनी लाठियां चलती थी, जितने लड़के आत्महत्या करते थे, जितने लड़के हाईकोर्ट जाते थे, वो रिकॉर्ड था। और मैं अपनी बात बता दूं, हमने क्या किया है। हमने 5 साल में ही 6.5 लाख 4.5 लाख सरकारी नौकरियां और 2.5 लाख जो है, और संविदा पर हम लोगों ने जो भर्ती किया था 6.5 लाख। और अब आने के बाद, इस सरकार में आने के बाद लगभग जो है 2 लाख उसमें और बढ़ोतरी हो गई है। 4.5 लाख में 6.5 लाख नौकरियां हो गई हैं। सबसे ज्यादा पुलिस में भर्ती हुई है 1.5 लाख से ऊपर। और अभी मैं 22 के बाद का मेरे पास कुछ डेटा है, थोड़ा सा 10 सेकेंड लूंगा। 29 अगस्त 22 को 573 जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति की गई। 30 सितंबर को आबकारी 350 आबकारी आरक्षी। 4 अक्टूबर को 110 महिला आबकारी आरक्षी। 20 नवंबर को 1500 स्टाफ नर्स लोक सेवा आयोग के तहत नियुक्ति पत्र दिया गया। 18 दिसंबर 22 को 1500 प्रवक्ता। ये सारे हम लोगों ने किए। ये क्या किसमें ठाकुर और वो कहाँ आ गया। मेरा एक सवाल, मेरा आपसे एक सवाल एंड देन लास्ट कमेंट्स फ्रॉम एवरीबॉडी। मेरा सवाल ये है कि आपके मुताबिक बीजेपी से कोई गलती हुई अपने प्रचार में? कोई गलती हुई, और अगर हुई तो वो क्या है? देखिए, हमारे मुताबिक जो हम लोगों से जो गलती हुई, एक गलती तो ये हो गई कि जो मैंने पहले बताया आपको, हमारे पास राम मंदिर है, मोदी है, योगी हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती हो गई, ये जो भ्रामक प्रचार हुए, इसको हम लोग काट नहीं पाए समय रहते। कि वो खटाखट 85-172, देखिए 72,000 का नारा था, नहीं चल पाया था उनका। लेकिन ये कैसे एनजीओ के माध्यम से बांट दिया गया। कांग्रेस के तो इतने कार्यकर्ता नहीं है जितने इन लोगों ने वो चिट्ठियां बांटी थी, ये सोचना होगा। तीसरा हम लोगों से जो गड़बड़ी हुई थी कि ये जो समय पर आरक्षण रद्द करने का हमारे नेताओं के द्वारा जो बयान आ गया, जिसको इन लोगों ने ढाल बनाया, ये एक गड़बड़ी हो गई थी हमारे नेताओं के द्वारा। ये भी एक गड़बड़ियों में मैं गिनता हूं। बाकी पार्टी कैसे लेती है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गिनता हूं। जी ओके, नासिर सलीम, व्हाट इज द लर्निंग फॉर द ऑपोजिशन? हमने बीजेपी से पूछा कि उनके लिए क्या लर्निंग थी, आपके लिए क्या लर्निंग है? देखिए, हमारे 3 लर्निंग्स हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये MY जो कह रहे हैं वो है महिला और यूथ। तो इनको तो पहले मैं समझा दूं, सबको बता दूं, M+Y इज महिला और यूथ। तो ठीक है, तो ये आप पुरानी बातों में ना जाएं। नंबर 2 जो जमीन पे दिख रहा है। दूसरी चीज हमें ये कि अब ये समझ में आ गया है कि बीजेपी को इनकी ही भाषा में कैसे इनको हराया जाए। ये जो बात करते हैं, ये पीडी हमने क्या किया, पीडी हमने इसलिए नारा लाया क्योंकि आज जो जमीन पे जो हम देख रहे हैं, उसकी आवाज बुलंद करने की, जो सबसे लास्ट मैन स्टैंडिंग है लाइन में, उसकी आवाज आगे बढ़ानी है, उसको आगे बढ़ाना है। और तीसरी चीज, हमें यूथ और किसानों पे, 2 लोगों पे काम करना है, क्योंकि इस सरकार ने इनकी विफलता सामने दिखती है। इन्होंने 7 साल से पूरी की पूरे कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में, उत्तर प्रदेश में खास करके मैं आपको गिनवा सकता हूं, बहुत सारी इनकी नाकामयाबियां जो हैं वो उभर के आती हैं। और यूथ और किसानों के मुद्दे पे ये बिल्कुल विफल हो चुके हैं और इनकी बौखलाहट दिखती है। और चौथी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, हमारा ये नारा है पीडीए के साथ सबको जोड़ा जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक कार्यकाल में हमारे 2012 और 17 में शुरू हुई थी जी, वो हम लोग उसकी आवाज को आगे बढ़ाएं, और जनता की जो राहत मिलती है, चाहे वो महंगाई कम करने की बात हो, चाहे वो बिजली देने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, ये सारी चीजें जो है, एमएसपी की बात हो, ये जो अहम मुद्दे हैं, इन पे आगे हम लोग जनता की आवाज को और बुलंद करेंगे। और हमारा पूरा विश्वास है कि 2027 में बहुत बड़ा बदलाव होने को आ रहा है। बरका जी, आप लिख लीजिएगा, मैं आपके शो में आया था, मुझे याद है मई के महीने में आया, तो मैंने आपसे कहा था एक तूफान आ रही है उत्तर प्रदेश में, और वो आपके सामने तब्दील होके आई है। तो मुझे पूरा विश्वास है, मुझे वो याद है, आपने अपनी ज्ञानी बाबा से सुनते रहे और उस पर अमल करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जनता अब अपना मन बना लिया है और जनता कहेगी कि हम चलिए आपको सुन के ये नहीं लग रहा कि चुनाव अभी खत्म हुए हैं, अभी लग रहा है कि हम बिल्कुल चुनाव के मिडिल में है दोबारा से। बट सबा, लास्ट वर्ड टू यू, going back not beyond Uttar Pradesh, what's happening within the BJP? You know, you said that jo ye tod phod ki rajniti hai, bringing in outsiders just to prove that you can break parties. This didn't go down well in states like Maharashtra. Gadkari referred to that. Yogi Adityanath referred to overconfidence. What are you picking up, or is it too early? Will we have to wait for the next set of assembly elections to really understand what's happening within the BJP? I think right now Prime Minister Modi and his entire sort of team is very much there. That is what we are told is the BJP, and that will continue to be reflected as the BJP unless there is a huge, for a while now, unless there is a huge setback, very huge, in Maharashtra and Haryana and Jharkhand. In that case, then things will happen because the BJP is much larger than just Modi. I just want to point out one thing, since we are talking, again, I go back to UP. What happened in UP beyond everything else, we must remember, is UP was ill-served by a prime minister just projecting himself, because the Samajwadi Party, you know, Barkha had zero spending on YouTube, had zero traditional ad spending, zero, according to, not them. I did the Google survey or whatever, nothing. And there the BJP was giving the state, Modi aayega, Modi ki guarantee, 400 par. And what they did, in fact, is they had a very organic campaign where candidates used music and songs in local dialects without that central. And of course, he campaigned everywhere, and they did it in more intelligent ticket selection, candidate selection, social. They gave more prominent seats to Dalit candidates, such as the Ayodhya. So all of this has happened. So in that, so now how does the BJP challenge that? If you have this central command control, there is a challenge now. Things will change. Of course, if Modi does spectacularly well, and if in the assemblies, he will hold on, because the truth is, it is 240 seats. You take away 20 from Odisha, it's actually 220. Odisha is new terrain almost. It is a very big loss they have suffered in UP, in Maharashtra, and in Bengal. They have setback. So we can't ignore it or make light of it. But because the BJP is a dynamic party, it has many layers. It is actually not a party of one person. It has been made a party of one person. So can that BJP be different? I don't know. You know, that's a very interesting question, because both you and I have lived through years where there were not just many people. There was those differences used to play out publicly, very different from today's BJP. And what sort of BJP we're going to see, I think we'll have to wait at least for the next round of assembly elections to find out. We'll leave it there. Thank you, Sabah, Nasir, and Ashwini ji, and to our audience. Thank you, and see you soon. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.